Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss and continue our recently launched initiative, that is PYQ series. And this is the part 1 of the PYQ series where we are covering the polity section, previous year questions of UPSC prelims. And this is the second video of that part 1 PYQ series. So without wasting time, let's move ahead on the previous year questions. As we know, we were covering the conceptual part that are asked in previous year. So questions with respect to that are asked in 2017, that is, out of the following statements, choose the one that best represent the principles underlying the cabinet form of government. So we have to determine the cabinet form of government. So what is cabinet form of government? Your answer is parliamentary democracy mechanism ensuring collective responsibility of government to people. तो आर्टिकल जो 74 एंड 75 है ये आपका रिलेटेड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कैसी होती है कैबिनेट फॉर्म भी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जाती है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर योर एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ your legislature, and especially all the work of executive is done largely the decision making body is cabinet, so it is also called cabinet form of government. So ये बाकी statements आप देखेंगे arrangement to minimize the criticism against the government, ऐसा कोई provision नहीं है cabinet form में कि जिससे कि तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट सिस्टम डिजाइन टू एक्सेलरेट गवर्नमेंट फंक्शंस एज इट्स रिस्पांसिबिलिटी कंटिन्यू टू एक्सपैंड दिस आल्सो डज नॉट रिलेट टू दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ टूल टू स्ट्रेंथन द अथॉरिटी तो ये तो हमारा ऐसा कोई टूल है ही नहीं जिससे अथॉरिटी इन्फ्लुएंस करे और उसको एक्सपैंड करे वो तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जाता है तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट इसमें तो एप्रोप्रिएट जो भी लग रहा है आपको खुद ही देखने से लग रहा है द आंसर इज सी. Here, executive is collectively responsible to legislation, which represents the people. The key and this form of cabinet form of government is actually, or the parliamentary form of government is actually the basic structure as determined by judiciary in various notions, and other statements do not reflect such constitutional principles. So moving on to our next question, which of the following is not a feature of Indian federalism? In the last lecture, we have covered the features of the Indian federalism. So here, A, independent judiciary is there, federalism feature. Clear division between center and state about the power, which is visible in your union list, state list, concurrent list. So that is also a feature of federalism. Then federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. Yes, that is also bicameralism is also your feature of federalism. तो ये सारे features देख लिए गए थे. Regarding the D statement that it is a result of agreement among the federating unit. So this is not true for Indian federalism. Indian federalism is based on Canadian model of federalism. While this is true, this statement is true for US federalism, where federal units have come together and agreed to form a common center. However, this was not done in Indian federalism. And Indian federalism is actually called the indestructible union of destructible states. तो पहली चीज तो हमारे यहाँ जो टर्म आर्टिकल 1 में लिखा होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स उसको हमने चूज किया है रादर देन फेडरल यूनिट्स और इंडिया मेड अप ऑफ स्टेट्स बिकॉज स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होती सिसीड करने की एंड देयर बाउंड्रीज कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी. सो अनलाइक यूएस सेनेट, इंडियन federalism is different from US federalism. And other statements you can see unequal representation है हमारे यहाँ states में based on the population, unlike the US Senate where there are 2 seats allocated to each the states in the United States of America. So moving on, the main advantage of the parliamentary form of government आप देख लो ये 2017 में repeatedly cabinet form पार्लियामेंट्री फॉर्म दोनों चीज पूछी गई है तो यहाँ भी वही फीचर है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. अलग अलग तो काम करते नहीं तो दिस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड मोर एफिशिएंसी
दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द परमानेंट एंड द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट एन इलेक्शन. इट कैन बी चेंज इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस, बट उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं, तो ऐसा प्रोविजंस भी नहीं है एक्सट्रीम. तो बचा गया आपका ऑप्शन सी. सो पहले हम ये देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डुअल एग्जीक्यूटिव, मींस द नॉमिनल executive, real is your prime minister, nominal is president, and collective responsibility of ministers and cabinet to lower house of the parliament, and majority rule, the ruling party whose prime minister is there must have a majority in the lower house. तो ये भी फीचर है. एक होता है dissolution of lower house if लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द टर्म एंड्स. ओके, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द टर्म. सो आपका ये सारे फीचर्स है पार्लियामेंट्री के. इसको किसी भी फॉर्म में बना के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को क्या कहते हैं? कैबिनेट फॉर्म भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं. एक फीचर इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Again, 5th and 6th schedule asked in 2015 also. See, repeatedly 5th schedule. तो इसके features तो आपको by heart you have to remember. And polity में everything is asked largely from Lakshmikant. Small number of questions, 1 or 2. Now UPSC is doing the variations. So 5th and 6th schedule are related to protection of scheduled tribe, as we have discussed earlier. 5th schedule deals with the scheduled tribes and scheduled area apart from those in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. And who declares scheduled area? Your president. And who governs them, who has the special power to make laws regarding those regions, is governor. And this is under 5th schedule. 6th schedule में क्या होता है? We make ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में, उनके लिए एडीसीज का प्रोविजन है. यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है 5th में, एंड 6th में आपका एडीसी बनता है. तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए. और इनके पास दोनों पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है. However, that is not so with the TACs. एंड अदर ऑप्शंस देखेंगे तो ये जो शेड्यूल्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टेट बाउंड्री से डील करे. एंड पंचायत वाला जो ऑप्शन है वो आपका डील करता है पार्ट 9 से. एंड एक क्रॉस द बॉर्डर स्टेट कोई ऐसा शेड्यूल स्पेसिफाइड नहीं है. तो आपको ये देखना है, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, एंड देन you can make the guess easily. And this is very important schedules. Next question, again schedule regarding the anti-defection, that is your 10th schedule. कब आया था? सेकेंड शेड्यूल में. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो. सेकेंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है आपका? दैट इज 5th शेड्यूल में हमने देखा ट्राइबल शेड्यूल एरिया है. 8th में आपके लैंग्वेजेस से रिलेटेड है. एंड इन योर सेकेंड शेड्यूल व्हाट इज देयर? योर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड जजेस. तो आप बता सकते हैं 10th शेड्यूल बचा है, वो है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है. दैट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन डन बाय एमपीज और एमएलएस. तो डिफेक्शन करेंगे तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उससे रिलेटेड है ये वाला आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हमने 10th शेड्यूल में उसके प्रोविजंस भी लिखे हैं. एंड हु टेक्स डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन? इट्स स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली, और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल. Moving on, now preamble is also one of the favorite topic repeatedly. Its theme and multiple questions, and that is very simple questions directly if you have read the preamble, उससे पूछे जाते हैं. So what was the, let's see the question, what was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? तो आपसे क्या पूछा गया है, कैसा टाइप का नेचर ऑफ स्टेट है? इट्स सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हेयर आपको कंफ्यूज करने के लिए सी एंड डी ऑप्शन में सेक्युलर ऐड किया है, बट सेक्युलर आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड ऐड हुआ था. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. एंड जो 26 जनवरी को प्रियम्बल में एक्चुअल वर्ड्स और टर्म्स यूज करे गए थे वो थे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड नॉट जस्ट
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो ये भी गलत है, एंड ये तो गलत है ही बिकॉज दीज टर्म्स वर एडेड लेटर ऑन इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे प्रियम्बल के कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ये हमने देख लिया। लेट्स सी, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India is the part of constitution but has no legal effect, not a part of constitution, has no legal effect either, it's a part of constitution and has same legal effect as any other part, and next is part of constitution but has no legal effect independently of other parts। तो देखिए ये तो dispute settle हो गया था रणधीर your केशवनंद भारती केस में, that yes preamble is essential part of constitutional fabric। ठीक है, ये बात बोली जा चुकी थी ऑलरेडी उससे पहले भी। तो ये तो है कि पार्ट तो है प्रीएम्बल। तो पार्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका? दो है, तीन ऑप्शंस हैं, ए सी एंड डी। बट इट हैज नो लीगल इफेक्ट, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज ये बोला गया था केशवनंद भारती केस में कि इसको हम इंटरप्रिटेटिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज कर सकते हैं, बट इसकी खुद की लीगल बाइंडिंग नहीं होगी। बट ये कहना कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज इफ टोटली लीगल इफेक्ट नहीं है, अगर हम दूसरों के साथ देखेंगे तो इसका लीगल इफेक्ट हो सकता है, दूसरे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट इंडिपेंडेंटली, अपने आप में खुद में नहीं है। तो आंसर डी है आपका। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। तो रणधीर सिंह केस में दिस वाज affirmed by Supreme Court that preamble and Article 14 and 16 held that Article 39 envisages a constitutional right of equal pay for equal work for both men and women। तो उन्होंने preamble का यूज किया है along with other articles। खुद में अकेला preamble के बेसिस में it cannot be said that it can be enforceable। Next question, in context of polity, which of the following would you accept as most appropriate definition of liberty? Liberty का हमने पहले भी देखा है, liberty क्या है? Opportunity to develop oneself fully। And एक ऑप्शन देखेंगे आप, opportunity to whatever one likes, this is incorrect because there are reasonable restrictions under Article 19। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऐसा नहीं है, लॉ से रिस्ट्रेंट बनाया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स में स्टेट्स पे रिस्ट्रेंट है, अदर प्राइवेट्स पे भी रिस्ट्रेंट दिए गए हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स और रूलर्स, यस दैट इज देयर, पर उससे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है एडी में, बट दिस इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो ऑलरेडी किया गया है। बट जो खुद को डेवलप करना है वो आपको तभी आएगा जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो ही एक्चुअल आइडिया है पॉजिटिव लिबर्टी का, फॉर पर्सनल डेवलपमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following reflect the most appropriate relation between law and liberty? Okay, so your answer here, if there are more laws there is less liberty, this is the negative conception, this is a negative conception of liberty। अगर ज्यादा लॉज होंगे तो आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट होगी, ये नेगेटिव कॉन्सेप्शन है, और कम लॉज में आपकी लिबर्टी ज्यादा होगी। बट इंडिया इस सिस्टम को हर जगह नहीं फॉलो करता है। इंडिया थिंक्स कि वेयर देयर इज लॉ, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अदरवाइज अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो लॉ होगा टू प्रोटेक्ट द अदर, तभी आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाओगे। इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैज टू बी मेड बाय पीपल, तो पीपल लॉज नहीं बनाते हैं, ठीक है। लॉ इज सोवरेन विल पे बनते हैं, लॉ आर द मेड बाय सोवरेन, जो लेजिस्लेचर है। लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज इंडेंजर्ड, ठीक है। तो लॉ एंड लिबर्टी में जो बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है वो आपका ये है। इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट बाय जॉन लॉक। तो वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्शन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। Moving on, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution? तो liberty of thought is there, आप preamble पढ़े, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, liberty of religion, everything is there in the preamble। but ये जो economic liberty है इसके बारे में नहीं बात करी गई, it is mentioned in your
डीपीएसपी के कुछ प्रोविजन से जो आपको इकोनॉमिक लिबर्टी देती है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. स्टेट शैल थ्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस. ये बात कौन कर रहा है? डीपीएसपी. नेक्स्ट, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन, ये सबको पता होना चाहिए. प्रीएम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. मूविंग ऑन, इकोनॉमिक जस्टिस अभी हमने पढ़ा, कहाँ पे है? डीपीएसपी में. ठीक है, लेकिन डीपीएसपी का ऑप्शन कौन सा है? एक है बी प्रीएम्बल और डीपीएसपी. एक है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, बट नॉट योर इकोनॉमिक जस्टिस. तो ये जो है आपका जस्टिस का जो ब्रॉडर वर्जन है वो प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी की स्पिरिट में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है एज कंपेयर टू योर फंडामेंटल राइट्स. दे लार्जली रिलेट टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट. तो यहाँ प्रीएम्बल में हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी से आ जाता है, पॉलिटिकल जस्टिस रहता है आपका फंडामेंटल राइट से. तो प्रीएम्बल के सोशल जस्टिस से एक्चुअली आप रिलेट कर सकते हैं टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डीपीएसपी के साथ इकोनॉमिक जस्टिस को भी. तो ज्यादा अप्रोप्रिएट इज योर बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सब टॉपिक सिटीजनशिप. इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. एक बार पूछा गया है 2021 में, आप देख सकते हैं. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. With respect to India, statement said the citizen by birth can only become head of the state. This is incorrect because president can also get naturalization process से citizenship of India and then can be elected, but that is not so. Indian president तो बाहर का भी हो सकता है, but US में ऐसा नहीं practice follow होता. तो आपका ये statement wrong है. A foreigner one granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. ऐसा नहीं है. In case of war, in case of fraudulent acceptance of the किसी fraud से आपने citizenship ले ली, then that can be cancelled by the government of India. तो ये दोनों statement नहीं है. तो बचा क्या आपका? one statement. There can be only one citizenship. Single citizenship इंडिया में follow होती है. ये आपका 1955 में भी mention है, आप देख सकते हैं. Part 2, Article 5 to 11 is related to Indian citizenship and India follow a principle of single citizenship. Means जितने भी Indians है, अगर whether they are staying in India or outside, if they have Indian citizenship, they can hold only that citizenship. In case they hold some other citizenship, their Indian citizenship will be automatically come over. ठीक है, they can no more be Indian citizen. Domicile भी single होती है at a time, जो आपका permanent resident होता है उसके basis पे. And President of India can either be a citizen by birth or a naturalized citizen. And according to third statement, yes, in case you have accepted the citizenship by fraudulent means, then your citizen can be revoked. And if you have shown any disloyalty or you have held enemy nation during wartime or imprisoned for 2 years within 5 years of the registration or has continuously lived outside in cases में for 7 years, in cases में आपकी citizenship ली जा सकती है. Moving on, the next subtopic is Indian federalism related. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? I think this question we have already done. Not parliamentary form is also done. 5th, 6th schedule. Okay, I think there is some. Yeah, fundamental rights. Next part is fundamental rights. So, under which of the following articles of Constitution of India has Supreme Court placed right to privacy? 24 का question है. Recent question है. Article 21. 2 बार पूछ चुके हैं राइट टू प्राइवेसी. आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट. इसके सारे सबसेक्शंस यू नीड टू रिमेंबर. तो explicitly there is no mention of right to privacy. It has, the courts over the time has recognized limited right to privacy under Article 21 with guaranteed life and liberty, and this was
स्पेशली डन इन केएस पुट्टास्वामी केस। तो पहले 2016 के पेपर में आपसे केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट पूछ रखा है, उसके बाद ये पूछ लिया है 21 अगेन, एंड इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच गारंटीज that privacy is essential for right to life and personal liberty. Okay, but it is not absolute. It is subject to reasonable restrictions, just like any other fundamental right. So more questions from fundamental right we'll start in the next video. Thank you. This is for today's session.